Dear students, welcome you all in the DSCJ home classes digital initiative by Worthy Director School Education Madam Anuradha Gupta. As part of this program, myself, Vivek Jundyal, lecturer in computer science, presently posted in Government Shri Ranbir Higher Secondary School, Pared, Jammu. In computer science subject of class 12th, today we will continue our third unit, that is inheritance extending classes. In my previous class, we discussed what is inheritance, importance of inheritance, and different visibility modes, public, private, and protected. We covered in our previous class. Now, in this class, today we will cover different types of inheritance, that is different forms of inheritance. This is as per the revised syllabus of J.K. Bose. Before going further, let us recapitulate what is inheritance, what is derived class, and what is base class. Inheritance in object-oriented programming can be described as a process of creating new classes from existing class. Inheritance क्या होती है object-oriented programming में? एक नई क्लास बनाना, कहाँ से? एग्जिस्टिंग क्लास से. हमारे पास एक बनी बनाई क्लास है, उस बनी बनाई क्लास से हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं. इससे क्या होता है? The process of obtaining the data members and methods from one class to another class is known as inheritance. जो डेटा मेंबर्स और जो मेथड्स हैं एग्जिस्टिंग क्लास के, वो ऑटोमेटिकली हमारी नई क्लास में भी आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द विजिबिलिटी मोड. हम किस विजिबिलिटी मोड से उनको एक्सेस कर रहे हैं, ताकि जो बेस क्लास में हमारे मेथड्स और जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं, वी कैन एक्सेस देम, वी कैन इनहेरिट देम इन अवर न्यू क्लास, दैट इज derived class. The class whose properties are inherited by other classes, वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जाती हैं अलग अलग क्लासेस में, are called base class और super class और parent class. The class which inherits property, वो क्लास जो नई क्लास है, जो एग्जिस्टिंग क्लास से प्रॉपर्टीज इनहेरिट करने जा रही है. द क्लास विच इनहेरिट प्रॉपर्टीज कहाँ से? फ्रॉम द बेस क्लास, दैट मीन्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, इज नोन एज, इज कॉल्ड ड्राइव क्लास और सब क्लास और चाइल्ड क्लास. यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है, जो जिससे हम नई क्लासेस बनाते हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम कहते हैं बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास. और जो हमारी नई क्लास क्रिएट करते हैं हम एग्जिस्टिंग क्लास से, उस क्लास को हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास. नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. इन C++ we have 5 types of inheritance, that is single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, hybrid inheritance. As part of the revised syllabus, we have to discuss only 3 in details: single inheritance, multiple inheritance and multi-level inheritance. Rest 2 we can elaborate them in a short. हमारे सिलेबस में ये 3 ही हैं इस बार, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी 2 को हम बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है. Now let's start our first form of inheritance, first type of inheritance, that is known as single inheritance. In a single inheritance, there exists single base class and single derived class. Single inheritance में क्या होता है? हमारे पास एक ही base class होती है और एक ही derived class होती है. It is the most simplest form of inheritance. ये बहुत ही simple form है inheritance की. हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, हमारे पास एक क्लास A है और एक क्लास B है. जो क्लास A है वो हमारी पेरेंट क्लास है या हमारी बेस क्लास है, और क्लास B है वो हमारी चाइल्ड क्लास है और ड्राइव क्लास है. यानी कि हमारी जो चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास है वो एक ही क्लास से इनहेरिट हो रही है, दैट मीन्स क्लास A. वो कितनी क्लासेस यूज करके नई क्लास बन रही है? ओनली 1. तो दैट मीन्स वो ड्राइव क्लास जो एक ही क्लास से बने उसको हम क्या कहते हैं? एक ही क्लास से इनहेरिट करे प्रॉपर्टीज, उस क्लास को हम क्या कहते हैं? उस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. व्हेन ए सिंगल क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट क्लास, जब एक ही क्लास एक ही सिंगल पेरेंट क्लास से ड्राइव की जाए, सिंगल क्लास ड्राइव फ्रॉम सिंगल पेरेंट क्लास, इट इज कॉल्ड
सिंगल इनहेरिटेंस, और उस चीज को हम क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। इट इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस, जितने भी इनहेरिटेंस हैं उन सब में सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगर इनहेरिटेंस है कोई तो वो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल इज ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, एनिमल क्लास किससे ड्राइव की गई है, लिविंग थिंग्स से। कार इज ड्राइव फ्रॉम व्हीकल, टाइपिस्ट इज ड्राइव फ्रॉम क्लास स्टाफ, स्टाफ हमारे पास एक क्लास है, उसमें से बड़े सारे स्टाफ में हो सकते हैं, कुछ लेक्चरर्स हैं, कुछ मास्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ क्लरिकल्स हैं, वैसे ही टाइपिस्ट किससे ड्राइव किए गए हैं, स्टाफ से। मैनेजर ड्राइव फ्रॉम एम्प्लॉय, सर्कल ड्राइव फ्रॉम शेप्स, बहुत सारी शेप्स हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल या कोई भी शेप है, उसमें से सर्कल जो है ड्राइव की गई है शेप क्लास से। अब हम बात करते हैं, अगर कार इज ड्राइव फ्रॉम व्हीकल तो हम कह सकते हैं जैसे कार, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, ये ऑल किसके टाइप्स हैं, व्हीकल्स की, एंड ऑल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक टायर, ब्रेक्स, सीट एटसेट्रा। सब में, तीनों में ये प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो कार हो, बाइसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, तीनों के पास टायर है, तीनों में ब्रेक्स हैं, तीनों में सीट हैं, तो और सो दे कैन बी ड्राइव फ्रॉम क्लास व्हीकल, तो हम कह सकते हैं हम ये व्हीकल क्लास से इनको ड्राइव कर रहे हैं। देयरफॉर व्हीकल इज बेस क्लास एंड कार, बस, मोटरसाइकिल आर ड्राइव क्लास। तो हम कह सकते हैं व्हीकल हमारी जो है बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, और जो हमारी कार है, बस है या मोटरसाइकिल है, ये तीनों हमारी क्या हैं, ड्राइव क्लास हैं। किसके ड्राइव क्लास हैं, क्लास व्हीकल के। अब नाउ वी विल डिस्कस द सिंटेक्स ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। अगर सिंगल इनहेरिटेंस है तो प्रैक्टिकली C++ में हम सिंगल इनहेरिटेंस जब इंप्लीमेंट करते हैं तो हम क्या सिंटेक्स यूज करते हैं। क्लास बेस क्लास नेम, बेस क्लास नेम मतलब जो हम नॉर्मल क्लासेस हम बनाते आ रहे हैं C++ में, हम वैसे ही क्लास बनाएंगे, क्लास बेस क्लास नेम, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसके कुछ मेथड्स होंगे। प्रॉपर्टीज मतलब उसके कुछ वेरिएबल्स, जो हम वेरिएबल्स क्लासेस में यूज करेंगे वो प्रॉपर्टीज कहते हैं उनको, और जो फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस हम क्लासेस के अंदर यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेथड्स। तो एक नॉर्मल C++ की क्लास है, उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स हैं। अब हम यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हम ड्राइव क्लास क्रिएट करने वाले हैं। अभी तक हमने नॉर्मल क्लासेस ही बनाई हैं C++ में, अब हम एक नई ड्राइव क्लास बनाने जा रहे हैं C++ के अंदर। हम ड्राइव क्लास कैसे बनाते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्लास ड्राइव क्लास नेम, यानी कि वो वाले क्लास का नाम हम लिखेंगे जो हमने ड्राइव करनी है, यानी कि ड्राइव क्लास का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और सिंगल कोलन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कोलन ये बताता है कि हम ड्राइव क्लास कैसे इनहेरिट करेंगे बेस क्लास से। उसके बाद विजिबिलिटी मोड और बेस क्लास का नाम। विजिबिलिटी मोड मतलब द वे वी इनहेरिट आवर बेस क्लास, ये डिटेल हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। तो 3 तरह के हमारे पास विजिबिलिटी मोड हैं, पब्लिक विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड और प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस विजिबिलिटी से, किस फॉर्म से हम बेस क्लास को इनहेरिट करने जा रहे हैं अपने ड्राइव क्लास में। और उसी तरह ड्राइव क्लास की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ मेथड्स होंगे। यानी कि सिंपल इनहेरिटेंस, अगर हमें सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें या कोई भी इनहेरिटेंस की बात करें तो सबसे पहले हमें 2 क्लासेस की जरूरत है, एक हमारी बेस क्लास और दूसरी हमारी ड्राइव क्लास। जो बेस क्लास है उसमें कोई भी सिंटैक्स में कोई चेंजेस नहीं है, वो जैसे हम नॉर्मल C++ में क्लासेस बनाते आ रहे हैं हम वैसे ही क्लास बनाएंगे एज ए बेस क्लास। उसमें हमें बेस क्लास लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्लास स्टूडेंट, तो हमारे ये एक्ट करेगा बेस क्लास। और जो हमें ड्राइव क्लास बनानी है उस समय हमें ध्यान रखना है कि हमें ड्राइव क्लास जब बनानी है तो हमें मेंशन करना है कि हम ड्राइव क्लास किस बेस क्लास से बना रहे हैं, हमें किस बेस क्लास से अपनी नई ड्राइव क्लास क्रिएट करनी है, इनहेरिट करनी है, और वो किस फॉर्म में इनहेरिट करनी है, कौन से विजिबिलिटी मोड यूज कर हमें वो बेस क्लास जो है वो इनहेरिट करना है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक नॉर्मल क्लास है उसकी भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, एक ड्राइव क्लास है उसके भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। सिंटेक्स कहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्लास, ड्राइव क्लास का नाम, कोलन, विजिबिलिटी मोड एंड बेस क्लास का नाम। इस एग्जांपल से हमें इजीली क्लियर समझ में आ रहा है
हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास का नाम है पर्सन और एक क्लास का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारी ड्राइव क्लास है, पर्सन हमारी जो है पेरेंट क्लास इज पर्सन, एंड चाइल्ड क्लास स्टूडेंट एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। हमारी पेरेंट क्लास को पहले हम डिस्कस करते हैं। हमारी पेरेंट क्लास में है, पेरेंट क्लास का नाम है पर्सन। एक नॉर्मल C++ के क्लास जैसे हम मेंशन करते आ रहे हैं वैसे ही है, इसमें कुछ भी हमें बेस क्लास स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये कोई कीवर्ड है बेस क्लास। ये सिर्फ हम अपने लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूज करते हैं। दिस इज अवर बेस क्लास नेम, दिस इज अवर ड्राइव क्लास नेम। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्लास पर्सन, हमने एक क्लास क्रिएट की जिसका नाम है पर्सन। अब इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। पहला वेरिएबल है नेम, स्ट्रिंग नेम, यानी कि एक वेरिएबल है नेम जो हमसे नेम लेगा, और दूसरा वेरिएबल है एज जो हमसे एज लेगा। उस स्टूडेंट की नेम क्या है और उस स्टूडेंट की एज कितनी है। यानी कि हमारे पास एक क्लास है पर्सन, उस क्लास में हमने क्या चीजें डिफाइन की, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक नेम है और दूसरा है स्टेज। दो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की पर्सन क्लास के अंदर। यहाँ पे हमने क्लास क्लोज कर दी फॉलोड बाय सेमीकोलन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग क्लासेस इन C++। नाउ वी कम टू ड्राइव क्लास। अब हम देखते हैं कि हम ड्राइव क्लास कैसे बनाएंगे। क्लास स्टूडेंट यानी कि क्लास ड्राइव क्लास का नाम। अब हमने ड्राइव क्लास का नाम क्या रखा यहाँ पर, स्टूडेंट। क्लास स्टूडेंट कोलन पब्लिक पर्सन। पब्लिक का मतलब ये है कि हम जो बेस क्लास है उसको किस फॉर्म में इनहेरिट करने जा रहे हैं। हम इस टाइम पे बेस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट करने जा रहे हैं और हमारी बेस क्लास का नाम क्या है, पर्सन। जब हमने कहा पब्लिकली इनहेरिट करने जा रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि जब हम क्लासेस को पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो क्या होता है, तब जो बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ड्राइव क्लास के पब्लिक मेंबर्स बन जाते हैं। ये प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस की जो हमने पिछली क्लास में कवर की है। When we inherit the base classes as publicly, what happen in that case? In that case, the public member of the base class become the public member of the drive class, and the protected member of the base class become the protected members of the drive class. अब हमारी बेस क्लास में इस टाइम पे तो कोई भी प्रोटेक्टेड मेंबर हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हमारे पास कौन से मेंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेंबर्स हैं। तो ऑटोमेटिकली लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कि ये जो पब्लिक मेंबर्स में ये जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किया नेम और एज, ये ऑटोमेटिकली हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, पब्लिक मेंबर्स में आ जाएंगे और हमारे ड्राइव क्लास के पब्लिक मेंबर्स में आ जाएंगे। और ड्राइव क्लास में क्या हमने डिफाइन किया, हमने ड्राइव क्लास में अगर हम देखेंगे हमने यहाँ पे ड्राइव क्लास में कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, कोई भी डेटा मेंबर्स डिक्लेयर नहीं किया है। हमने क्या डिक्लेयर किया है पब्लिक मेंबर के अंदर, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है और उस फंक्शन का नाम है शो। उस फंक्शन में हम शो फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम शो फंक्शन में नेम क्या है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं, एज क्या है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। अब जो मैंने बात बोली कि हम लॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट अगर हम डिटेल में देखें तो कैसे होगा, जैसे ही हम क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं हमारी स्टूडेंट क्लास की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। वो डेफिनेशन क्या होगी, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। हमें ओरिजिनल प्रोग्राम में वो डेफिनेशन दिखाई नहीं देगी, बट हमें प्रैक्टिकली लॉजिकली उस चीज को कैसे समझ सकते हैं, वी विल एक्सप्लेन हियर। क्लास स्टूडेंट पब्लिक पर्सन, जैसे ही पब्लिक विजिबिलिटी मोड यहाँ पे यूज किया हमने, तो बेस क्लास के ये दोनों मेंबर्स हमारे ड्राइव क्लास के पब्लिक सेक्शन में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। हमें अलग से वेरिएबल्स को ड्राइव क्लास में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। यही फायदा है इनहेरिटेंस का यहाँ पर कि हम बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास के फीचर्स को हम ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हमने ड्राइव क्लास बनाई है, हम एन नंबर ऑफ ड्राइव क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड सो ऑन टू स्टूडेंट n। और उन ड्राइव क्लासेस में हमें बार बार स्ट्रिंग नेम या इंट एज ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि हमने इनको बेस क्लास में डिफाइन किया गया है और उन प्रॉपर्टीज को हम अपनी ड्राइव क्लासेस में इनहेरिट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर रहे हैं, हमें बार बार उनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट of inheritance. This is the importance of, this is the significance of inheritance कि हम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। जो हमारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज है हम उनको चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर रहे हैं, हमें एक्सप्लिसिटली इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली आ गए हैं। देन पब्लिक सेक्शन ऑफ द ड्राइव क्लास, और उस पब्लिक सेक्शन में हमने शो फंक्शन डिक्लेयर किया है। उस शो फंक्शन में हम डिफाइन कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं नेम इज नेम, एज इज एज। और ये नेम और एज जो है वो कहाँ से आएगा, इनकी वैल्यूज मेन में। अब इसके बाद हम मेन फंक्शन देखेंगे। मेन फंक्शन में जो हम नेम पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और जो एज पास करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऑल्दो ये दोनों मेंबर्स हमारे स्टूडेंट क्लास के नहीं थे, ये दोनों मेंबर्स किस क्लास के हैं, बेस क्लास के हैं। पर जब हमने अपनी ड्राइव क्लास बनाई, उसको पब्लिकली इनहेरिट करवाया, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों मेंबर्स हमारे ड्राइव क्लास के भी पार्ट बन गए। नाउ ये हमारी, अब हम मेन सेक्शन में आते हैं। पहले हमने क्लास, बेस क्लास डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने ड्राइव क्लास डिक्लेयर की। अब हम मेन सेक्शन, थर्ड पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, यानी कि हम मेन सेक्शन पे आते हैं कि मेन सेक्शन में प्रोग्राम को अब हम ये क्लासेस के इनहेरिटेंसेस के प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो हमारे C++ में हर कोई प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलर ऑलवेज गो एंड सर्च फॉर द मेन फंक्शन, मेन इज द गेटवे टू माय प्रोग्राम। तो मेन फंक्शन में आकर कंपाइलर ने सर्च किया कि इसमें हो क्या रहा है, और मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस लिखी जाएंगी वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी, और C++ के प्रोग्राम्स बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर एग्जीक्यूट होंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, और उस वेरिएबल, उसका नाम है, उस वेरिएबल का नाम है s। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट एज। एज क्या है, एक वेरिएबल है, किसका वेरिएबल है, इंटीजर क्लास का, यानी कि एज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। वैसे ही हमने स्टूडेंट, हमारी क्लास है, उसका एक इंस्टेंस, उसका एक ऑब्जेक्ट, उसका एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम है s। तो स्टूडेंट s, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया s, और उसके बाद हम यहाँ पर s.name। अब हमने ये पिछले क्लासेस में कवर किया है, हाउ टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लासेस। हम डेटा मेंबर्स, क्लासेस के डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, थ्रू द डॉट ऑपरेटर। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है s डॉट, और वेरिएबल का नाम है नेम, और यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं माधव। s डॉट एज, हम एक्सेस कर रहे हैं एज वेरिएबल को यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू 20, यानी कि दोनों वेरिएबल्स को हम वैल्यू पास कर रहे हैं। एक वेरिएबल को, नेम को हम वैल्यू पास की माधव, और दूसरे एज को हमने वैल्यू पास की 20। देन हम कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग चाइल्ड क्लास फंक्शन s.show। अब s.show करने से क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट आएगा इसका नेम इज माधव, एज इज 20। हम नाम जो हमने पास किया मेन फंक्शन में, वो आउटपुट में कैसे आ जाएगा, नेम इज माधव, एज इज 20। इसके साथ हमारी सिंगल इनहेरिटेंस जो है वो कंप्लीट हुई। सिंगल इनहेरिटेंस में हमने क्या कवर किया अभी, सिंगल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस है जिसमें एक ही ड्राइव क्लास है, और एक वो ड्राइव क्लास एक ही बेस क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ए सिंगल ड्राइव क्लास, यानी कि एक सिंगल ड्राइव क्लास में इनहेरिट फ्रॉम 2 और मोर देन 2 बेस क्लासेस। हमारे पास यहाँ पे फिगर से समझते हैं, हमारे पास 3 क्लासेस हैं यहाँ पर, क्लास A, क्लास B, क्लास C। ये जो हमारी ड्राइव क्लास है उसका नाम है क्लास C, और हमारी पेरेंट क्लासेस हैं क्लास A और क्लास B। यानी पेरेंट क्लासेस कौन कौन सी हमारी, क्लास A और क्लास B हमारी पेरेंट क्लासेस हैं, और ड्राइव क्लास कौन सी है हमारी, क्लास C, यानी चाइल्ड क्लास कौन सी है हमारी, क्लास C। ये जो हमारी चाइल्ड क्लास है, ड्राइव क्लास है, सब क्लास है, ये कितनी क्लासेस से बन रही है, कितनी क्लासेस से वैल्यूज को इनहेरिट कर रही है, कितने क्लासेस से ये ड्राइव की जा रही है,
डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है ये दो क्लासेस से बन रही है। वो ड्राइव क्लास, वो सिंगल ड्राइव क्लास जो इनहेरिट होती है मोर देन टू क्लासेस, दो या दो से ज्यादा क्लासेस से इनहेरिट की जाए, उस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस व्हेन ए सिंगल ड्राइव क्लास inherits properties from two or more than two base classes. In that case we can call it as multiple inheritance. इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम अपनी रियल लाइफ में भी कह सकते हैं। जैसे एक चाइल्ड है, वो अपनी प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है फादर से और मदर से, तो दो बेस क्लासेस से सिंगल बेस क्लास हमारी ड्राइव क्लास बन रही है। When a class is derived from two or more base classes, जब एक क्लास ड्राइव की जाए दो या दो से ज्यादा बेस क्लासेस से, such inheritance is called multiple inheritance, और उस इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। It allows us to combine the feature of several existing classes into a single class. इसकी इम्प्लीकेशन या इसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या होगा कि फीचर्स, डिफरेंट बेस क्लासेस के फीचर्स किस में आ जाएंगे? वो जो सिंगल ड्राइव क्लास होगी, वो सिंगल ड्राइव क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स ऑफ द बेस मल्टीपल बेस क्लासेस, उनके फीचर्स ऑटोमेटिकली उस सिंगल ड्राइव क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लिक्विड एंड फ्यूल। A child has character of both father and mother, जो हमने ऑलरेडी बोला कि हमारे चाइल्ड है, उसके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, इनहेरिट करता है वो किससे? अपने फादर से और मदर से। नाउ कम टू द सिंटैक्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स देखा, अब हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में कैसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को C++ में कैसे प्रैक्टिकली लिखते हैं, क्या उसका सिंटैक्स है जिससे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करते हैं C++ में। क्लास, बेस क्लास 1, यानी कि एक हमारे पास बेस क्लास होगी, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, उसके कुछ मेथड्स होंगे। लाइकवाइज क्लास बेस क्लास 2, हमारे पास एक और बेस क्लास है, जैसे बेस क्लास 1 थी वैसे ही बेस क्लास 2 है, और उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उसके भी कुछ मेथड्स हैं। अब हम यहाँ पर ड्राइव क्लास बनाने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज यहाँ पे ध्यान से समझना। क्लास ड्राइव क्लास नेम, हम एक ड्राइव क्लास बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ तक सेम है, कोलन, नई चीज यहाँ पे है विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 1, कॉमा विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 2, यानी कि हमने एक ड्राइव क्लास बनानी है। कहाँ से बनानी है? दो बेस क्लासेस से बनानी है। तो यानी कि हमें दो बेस क्लासेस को मेंशन करना है कि जहाँ से हम नई ड्राइव क्लास बनाने जा रहे हैं। तो हमारी जो पहली बेस क्लास है उसको हम किस विजिबिलिटी मोड से इनहेरिट कर रहे हैं, और दूसरी बेस क्लास को हम किस विजिबिलिटी मोड से इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे दोबारा रिपीट करूं, अगर यहाँ पे मैं विजिबिलिटी मोड हम डिफाइन ना करें तो बाय डिफॉल्ट C++ प्राइवेट विजिबिलिटी मोड यूज करेगा। क्लासेस के अंदर भी अगर हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया होता तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर हमारा है प्राइवेट। तो लाइकवाइज जब हम इनहेरिटेंस में भी जब हम क्लासेस को इनहेरिट करते हैं, अगर उस टाइम पे अगर हम कोई भी विजिबिलिटी मोड मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट विजिबिलिटी मोड विल बी इंप्लीमेंटेड इन दैट केस। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि हम कितनी बेस क्लासेस से एक नई ड्राइव क्लास बनाने जा रहे हैं और उनका विजिबिलिटी मोड क्या है। ये जो ड्राइव क्लास बनेगी इसमें अपने भी कुछ फीचर्स होंगे, जैसे इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे, और ये बेस क्लासेस के भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करेगा अपने ड्राइव क्लास में। सो वी कैन से द ड्राइव क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स ऑफ मल्टीपल बेस क्लासेस इन इट्स ओन क्लास अलोंग विद इट्स ओन फीचर्स। अपने फीचर्स के साथ वो उन नए फीचर्स को भी इनहेरिट करेगा। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C। ये जो क्लास A है ये पेरेंट क्लास है, क्लास B ये भी पेरेंट क्लास है, क्लास C ये एक चाइल्ड क्लास है। कैसे पता चला हमें ये चाइल्ड क्लास है? क्योंकि दोनों क्लासेस के आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, इस क्लास C के आगे कुछ मेंशन किया गया है। उसका सिंटैक्स क्या है? एक कोलन लगाया हमने, विजिबिलिटी मोड लगाया, बेस क्लास का नाम लिखा, कॉमा विजिबिलिटी मोड बेस क्लास का नाम, कॉमा विजिबिलिटी मोड बेस क्लास का नाम। इस तरह से
अगर हमें 2 से ज्यादा मल्टीपल बेस क्लासेस करनी है तो इस तरह से हम आगे कॉमा करके उन क्लासेस का भी नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन से क्लास A and class B both are parent in context of class child class C। तो A हमारी पेरेंट क्लास है, B हमारी पेरेंट क्लास है, C हमारी चाइल्ड क्लास है। वो चाइल्ड क्लास कैसे ड्राइव क्लास बनी है? वो B से इनहेरिट हो रही है और A से इनहेरिट हो रही है। कैसे इनहेरिट हो रही है? पब्लिक विजिबिलिटी मोड से। A भी कैसे इनहेरिट A से भी कैसे इनहेरिट हो रहा है? पब्लिकली विजिबिलिटी मोड यूज करके। नाउ अब एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लास A एक बनाई, उस क्लास A के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग नेम क्लास A, then we define in the public section string name। Likewise हमने एक और क्लास बनाई क्लास B, उसके पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया int marks। यानी कि अभी तक हमने 2 क्लासेस क्रिएट की, क्लास A उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग नेम, क्लास B उसके अंदर भी एक वेरिएबल डिफाइन किया int marks। तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। नाउ कम टू द क्लास C, जो हमारी ड्राइव क्लास है वो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है क्लास B से और पब्लिकली इनहेरिट हो रही है क्लास A से। अब लॉजिकली समझते हैं, क्लास चाइल्ड क्लास C इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ चाइल्ड क्लास A एंड चाइल्ड क्लास B। ऑटोमेटिकली जैसे ही ड्राइव क्लास हमने C क्रिएट की, उसने प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, कहां से? A से भी और B से भी। अब आफ्टर इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास C लुक्स लाइक दिस। लॉजिकली अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्लास C जो ड्राइव क्लास है, जब ये इनहेरिट करेंगे, एक ड्राइव क्लास बनाएंगे इसको, तो होगा क्या? उस समय लॉजिकली क्लास C की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी? ऑटोमेटिकली इसके पब्लिक सेक्शन में क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग नेम, और पब्लिक सेक्शन में क्या आ जाएगा? मार्क्स। ये दोनों वेरिएबल्स 2 अलग अलग बेस क्लासेस में डिफाइंड है। जैसे ही एक हम नई ड्राइव क्लास बनाएंगे, बेस क्लासेस के फीचर्स ड्राइव क्लास में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे। हमें उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें उनको एक्सप्लिसिटली दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हेनेवर वी क्रिएट ए ड्राइव क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास। बेस क्लास के जो मेंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ड्राइव क्लास में आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वे वी इनहेरिट द ड्राइव क्लास। हम बेस क्लास को किस वे में इनहेरिट कर रहे हैं, उस मेथड को देखते हुए बेस क्लास के फीचर्स हमारे ड्राइव क्लास में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा और एक्सटेंड करके समझते हैं। क्लास A पब्लिक स्ट्रिंग नेम, वी ऑलरेडी कवर दिस। क्लास B पब्लिक इंट मार्क्स C। नाउ क्लास C पब्लिक B कॉमा पब्लिक A। एक क्लास C बनी हमारी, उसमें दोनों क्लासेस से ये इनहेरिट की प्रॉपर्टीज ड्राइव क्लास बनाई हमने क्लास C। और उस ड्राइव क्लास का अपना कुछ एक फीचर है। वो फीचर क्या है? हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं शो। पब्लिक सेक्शन में हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं वॉइड शो, और उस फंक्शन के अंदर हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। नेम इज नेम, मार्क्स आर मार्क्स। अब हम मेन फंक्शन में जाते हैं। यहाँ तक हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई। हमने 3 क्लासेस बनाई अभी तक। क्लास A उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, क्लास B उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स, क्लास C एक ड्राइव क्लास बनाई जो B और A से अपने फीचर्स इनहेरिट कर रही है पब्लिकली। उससे क्या होगा? ये दोनों मेंबर्स C के अंदर आ जाएंगे। अब C का अपने भी कुछ मेंबर है। अब C में क्लास के अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है शो। अब इस शो में हम इस मेंबर फंक्शन में, इस फंक्शन के द्वारा हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन राइजेस, इन वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी कहां से? इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आएगी मेन फंक्शन से। नाउ कम टू द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज द गेटवे टू एवरी C++ प्रोग्राम। इन मेन, इस मेन के अंदर हम क्लास C का एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल, एक इंस्टेंस डिक्लेयर कर रहे हैं C और स्मॉल में C। कैपिटल C केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो C हमारी क्लास है, बेस क्लास है। एक ड्राइव क्लास है। उस C का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं C, और उस वेरिएबल की मदद से हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। C डॉट नेम वैल्यू पास की हमने माधव, C डॉट मार्क्स वैल्यू पास की 90, यानी कि स्टूडेंट का नाम माधव है और उसके मार्क्स हैं 90।
ये दोनों वैल्यूज जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो नेम के अंदर नेम स्टोर हो जाएगा, मार्क्स के अंदर उसके मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन शो फंक्शन को अब हमें कॉल भी तो करना है। उस फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे? c.show। जैसे हम c.show करेंगे, दिस फंक्शन विल ऑटोमेटिकली इन्वोक एंड इट विल डिस्प्ले नेम इज नेम, मार्क्स आर मार्क्स। आउटपुट इज नेम इज माधव, मार्क्स आर 90। सो हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस देखी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है उसमें ड्राइव क्लास जो है दो या दो से ज्यादा बेस क्लासेस से इनहेरिट की जाती है। उसका मेन बेनिफिट क्या है कि जो ड्राइव क्लास है दैट कैन इनहेरिट फीचर्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस। अपने फीचर्स भी होंगे उस क्लास ड्राइव क्लास के अंदर और उस अपने फीचर्स के साथ साथ वो बेस क्लासेस के फीचर्स को भी इजीली इनहेरिट कर पा सकता है। अब इस इनहेरिटेंस में एक छोटी सी एक प्रॉब्लम आ जाती है, एम्बिग्यूटी जिसको हम कहते हैं, कंफ्यूजन कहते हैं, कि अगर हमारी दोनों बेस क्लासेस में जो हमने बात की, एक बेस क्लास है और बी बेस क्लास है, अगर उन दोनों बेस क्लास में एक सेम नाम का फंक्शन हो, वहां पे भी एक डिस्प्ले फंक्शन हो और दोनों बी में भी एक डिस्प्ले फंक्शन हो, तो जो हमारी ड्राइव क्लास होगी, ड्राइव क्लास में वो दोनों फंक्शंस आ जाएंगे, तो एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि ड्राइव क्लास किस फंक्शन को कॉल कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एम्बिग्यूटी। डिटेल में पढ़ते हैं क्या होती है एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। In multiple inheritance, a single class is derived from two or more parent classes. So, there may be a possibility that two or more parents have same named member function. जैसे हमारी एक बेस क्लास थी A, दूसरी बेस क्लास थी B। अगर दोनों बेस क्लासेस में एक ही नाम का फंक्शन हो, उसमें भी A क्लास में भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन हो और B में भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन हो, तो क्या होगा? तो एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि C जो है वो किस बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है, वो एम्बिग्यूटी। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नीड्स टू एक्सेस वन ऑफ द सेम नेम्ड मेंबर फंक्शन, जब इस जरूरत आएगी कि हम उस फंक्शन को कॉल करें, देन it results in ambiguity, और से confusion पैदा हो जाएगी। The compiler is confused as methods of which class to call and on executing the call statement। हम किस बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दिस इज द कंफ्यूजन। इसको आप डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्लासेस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। सपोज इन क्लास ए हमारे पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, void display cout, this is method of A। सेम वे क्लास B है हमारे पास, उसमें पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया डिस्प्ले, और उस फंक्शन के अंदर क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, दिस इज मेथड ऑफ B। फिर क्लास C डिफाइन की हमने ड्राइव क्लास, जो पब्लिक A पब्लिक B दोनों बेस क्लासेस से इनहेरिट हो रही है, और उस पब्लिक क्लास के अंदर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया। देन मेन फंक्शन क्रिएट करके हम मेन फंक्शन में C क्लास का, ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, सैंपल, और सैंपल डॉट डिस्प्ले। यहाँ दिस काजेस एम्बिग्यूटी, यहाँ पे एम्बिग्यूटी आएगी कि ये जो सैंपल है, सैंपल मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने रखा सैंपल, इस सैंपल से जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले, ये कौन सा फंक्शन है? ये A क्लास का फंक्शन है या B क्लास का फंक्शन है? थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम ड्राइव क्लास बनाएंगे जो इनहेरिट कर रही है A और B से, तो ड्राइव क्लास की डेफिनेशन क्या होगी, लॉजिकली समझते हैं। क्लास C पब्लिक A कॉमा पब्लिक B, पब्लिक सेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, void display cout, दिस इज मेथड ऑफ A, यानी कि A बेस क्लास का void display फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारे C क्लास में, ड्राइव क्लास में आ जाएगा। लाइकवाइज void display, देखो एक और डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे आ गया है, और cout दिस इज मेथड ऑफ B, यानी B क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो भी आ गया यहाँ पर, और A क्लास का डिस्प्ले फंक्शन भी आ गया यहाँ पर, यानी कि बोथ बेस क्लासेस का फंक्शन हमारे यहाँ पर ड्राइव क्लास में आ गया। हियर वी कॉल द डिस्प्ले फंक्शन, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट से हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हियर वी कॉल द डिस्प्ले फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास C, बट कंपाइलर कंफ्यूज, हमारा कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो रहा है, विच डिस्प्ले फंक्शन इट कॉल, वो किस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करे, बिकॉज क्लास C
इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ क्लास ए एंड बी। जो हमारा क्लास ए है ये दोनों प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, ए की भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है और बी क्लास की भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। तो कंपाइलर किस तरह से मैसेज देगा, यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा, आएगा हमारे पास इन फंक्शन इन मेन रिक्वेस्ट टू मेंबर फंक्शन डिस्प्ले इज एम्बिग्युअस। सो यहाँ पर हमारा कंपाइल टाइम एरर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं इन एम्बिग्यूटीज को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, इन एम्बिग्यूटीज को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। Ambiguity resolution of multiple inheritance. This problem can be resolved by class name and using scope resolution operator to specify the class whose method is called. हम scope resolution operator की मदद से इस ambiguity को remove कर सकते हैं। scope resolution operator हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, जो हमें हर तरह की ambiguity को remove करने के लिए काम आता है। Derived object name यानी derived class का जो object होगा डॉट पेरेंट क्लास का नाम हम मेंशन करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सेम नेम्ड मेंबर फंक्शन जो मेंबर फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और उसके पैरामीटर्स। इन द प्रीवियस एग्जांपल इफ वी वांट टू कॉल द मेथड ऑफ क्लास ए के मेथड को अगर हम कॉल करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्ले, देन वी कैन कॉल इट एज बिलो। अब हम उस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं टू रिमूव एम्बिग्यूटी। सैंपल इज द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। सैंपल जो है हमारा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉट बेस क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम क्या है ए, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन मेंबर फंक्शन है। लाइकवाइज ऑब्जेक्ट का नाम सैंपल, डॉट बेस क्लास का नाम आ गया बी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले। यानी कि हम इन एम्बिग्यूटीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं C++ में बाय यूजिंग ए सिंपल सिंटेक्स। उस सिंटेक्स से हम क्या करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम स्पेसिफाई करेंगे हम किस क्लास के किस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन फंक्शन नेम। दैट मीन्स वी आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड which member of the which base class we are going to define it. प्रैक्टिकली देखते हैं अब। क्लास ए वही क्लास है, उसमें मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले, सी आउट दिस इज मेथड ऑफ ए। क्लास बी मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले, दिस इज मेथड ऑफ क्लास बी। क्लास सी के अंदर है पब्लिक ए और पब्लिक बी, यानी क्लास से इनहेरिट हुई ए और बी से। और यहाँ पे इन मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, सी सैंपल, यानी कि सी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया सैंपल, और सैंपल को हम कैसे कॉल कर रहे हैं, सैंपल डॉट ए, यानी कि ए क्लास के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया और डिस्प्ले सैंपल डॉट ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले। दिस मीन्स वी आर कॉलिंग, हम कॉल कर रहे हैं ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को। हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ए क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो। इन ऑर्डर टू रिमूव द एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी, वी आर एक्सप्लिसिटली मेंशन हियर कि हम किस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ताकि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो, एम्बिग्यूटी ना पैदा हो कि दोनों क्लासेस में सेम मेंबर फंक्शन है, हम किस बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करने के लिए हम एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं, हाँ हम ए क्लास के बेस फंक्शन ए क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लाइकवाइज हम बी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा दिस इज मेथड ऑफ ए, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। उसी तरह सेम ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास ड्राइव की ए और बी से, मेन फंक्शन डिफाइन किया, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया सी सैंपल डॉट बी डिस्प्ले, यानी कि हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और मेंशन कर रहे हैं किस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किस क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हम क्लास बी के डिस्प्ले फंक्शन को, ये जो क्लास बी है इसके डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, सैंपल डॉट बी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले, यानी कि बी क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। There is another alternate way of doing the same thing. एक और तरीका है इसी चीज को, एम्बिग्यूटी को रिमूव करने का। पहला तरीका जो हमने समझा उस तरीके में हमने क्या किया, मेंशन कर दिया, जब हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं वहां पे हम क्लास का नाम भी मेंशन कर देते हैं और डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं। अनदर वे इज दैट कि क्लास ए डिफाइन की, उसमें डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, क्लास बी डिफाइन की और उसमें डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल किया। देन
सोल्यूशन ऑफ एम्बिग्यूटी क्या है, हम जब ड्राइव क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ड्राइव क्लास बना रहे हैं ए और बी से, उस ड्राइव क्लास के अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं आउटपुट, हम एक आउटपुट करके फंक्शन बना रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं बनाया। पिछले जितने भी एग्जांपल्स हैं वहां पे हमने आउटपुट करके फंक्शन नहीं बनाया। अब हम एक और नया तरीका समझ रहे हैं कि एम्बिग्यूटी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं क्लासेस के अंदर। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक आउटपुट क्लास बना रहे हैं, इस आउटपुट फंक्शन बना रहे हैं, आउटपुट फंक्शन बना रहे हैं। इस आउटपुट फंक्शन में हम दोनों फंक्शन बेस क्लास, जितने भी बेस क्लासेस हम यूज कर रहे हैं, यानी कि दो बेस क्लासेस जो हम यूज कर रहे हैं, बेस क्लास ए एंड बेस क्लास बी, उन दोनों बेस क्लास में जो सेम फंक्शन नेम है डिस्प्ले और डिस्प्ले, इन दोनों डिस्प्ले फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। यानी कि ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले, बी scope resolution operator display. Here inside a function body we set which function is called. तो यानी कि इस आउटपुट फंक्शन के अंदर हम दोनों डिस्प्ले फंक्शन को मेंशन कर रहे हैं, एक तो डिस्प्ले ए क्लास का डिस्प्ले फंक्शन और बी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। और उसके बाद इंट मेन फंक्शन हम डिफाइन किया, मेन इज द गेटवे टू माय प्रोग्राम। देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट सी सैंपल, सी एक हमारी ड्राइव क्लास का नाम, उसका ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है सैंपल। देन सैंपल डॉट आउटपुट, अब यहाँ पर हमें दोनों बेस क्लासेस को हमने नहीं कॉल किया, हमने उन दोनों बेस क्लास का जो कोड था, जो उनकी डेफिनेशन थी, हमने वहां पर ड्राइव क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया आउटपुट करके, दोनों की डेफिनेशन वहां उस फंक्शन के अंदर दे दी। और हम क्या कर रहे हैं, सैंपल डॉट आउटपुट, अब हम सिंपल उस आउटपुट फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं। जैसे ही आउटपुट फंक्शन कॉल होगा, क्लास ए का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एम्बिग्यूटी इजिली रिमूव हो जाएगी, इजिली रिजॉल्व हो जाएगी कि हम जो बेस क्लासेस में फंक्शंस अगर हैं और अगर उन फंक्शंस का अगर सेम नाम है और ड्राइव क्लासेस में अगर उनकी कंफ्यूजन बनती है, एम्बिग्यूटी होती है, उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं बाय स्पेसिफिकली मेंशन द बेस क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन द फंक्शन नेम। या तो हम इस तरह से मेन फंक्शन में डिफाइन करें, या इन चीज़ों को हम ड्राइव क्लास के अंदर एक फंक्शन बना लें, उस फंक्शन के अंदर उन चीज़ों को मेंशन करें और फिर हम ड्राइव क्लास का नाम और उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हमने दो जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं उनको कवर कर लिया यहाँ पर। एक हमारी आ गई सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरी हमारी आ गई मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में हम क्या कर रहे हैं, एक ही ड्राइव क्लास है जो एक ही बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक ड्राइव क्लास है जो मल्टीपल बेस क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कवर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Go through this class, note it down in your notebooks and try to learn the concepts कि inheritance क्या है, इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग इनहेरिटेंस इन C++, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ दे आर हेल्पिंग अस इन implementing programs in C++. Thank you students for today.